Discuss about cytology. So firstly we will get to know about what is cytology. Cytology is the branch of science in which we deals with the cells, which means in cytology we study about cell. So firstly the Robert Brown was the scientist who discovered the cell. Robert Brown. He was the British scientist who discovered the cell. Discovered the cell. So basically there are two types of cell we have. One is prokaryotic cell and another one is eukaryotic cell. So before that we will get to know about the longest cell. Longest cell in our body is nerve cell. Nerve cell. Nerve cell is the cell which is responsible for the proper functioning of our brain, and the biggest cell is of ostrich. Biggest cell is of ostrich and largest cell in our body is the nerve cell. Now we will discuss about the types of cells that I have already told you, that there are two types of cells, that is prokaryotic and the eukaryotic. Here we will talk about prokaryotic cell. And here we will talk about eukaryotic cell. Eukaryotic cell, right? So on the previous class we have discussed about the prokaryotics and eukaryotics, but we didn't have explained it in brief, right? So we will discuss about prokaryotic and eukaryotic. So prokaryotic cell is basically the cell that is found in bacteria and that is found in viruses. In this prokaryotic cell, I have already told you, in these cells no organelles are particularly defined, and in this eukaryotic cell these cells are found in animals, humans and also in plants. And in eukaryotic cells we have well defined nucleus, well defined membranes and well defined organelles. So let me draw the diagram of the prokaryotic cell. This is basically our prokaryotic cell, and this is the cell wall, outer membrane. Now we will draw the plasma membrane inside. And there is, in this center portion, there is nucleoid. That is not well defined nucleus. This is nucleoid, and here is the ribosomes, and this is called flagella. And this kind of cell is present in bacteria and viruses. There is only this cell wall. I have mentioned it. Cell wall, flagella. This is ribosome. And this is nucleoid. This is a simple type of structure that is found in bacteria and viruses. Now we will discuss about the eukaryotic cell. Now basically I will draw a diagram of animal cell. This is an animal cell that I am going to draw. Over here, this outer membrane is called plasma membrane, and the main function of this plasma membrane is to check the entry and exit of the materials inside and outside the cell. This
plasma membrane helps in this synthesis. This plasma membrane helps in the checkout of the worn out materials that are present in the cell. This checks the entry of the germs, entry of the foreign particles that are entering inside the cell. Other than this, there is a material called cytoplasm. This is a fluid that is present in the cell. This is called cytoplasm. Let me draw the diagram first, then I will explain it again. So this is the basic simple structure of the animal cell, right? Over the previous, this is the plasma membrane. Plasma membrane. This is our Golgi bodies. This is nucleus. This is endoplasmic reticulum. This is lysosomes, and this is mitochondria. Now I will tell you the functions of all these, right? So basically, let me talk in Hindi. The plasma membrane, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये चेक करेगी कि कौन सा मटेरियल, कौन सा पार्टिकल अंदर आएगा सेल के और कौन सा बाहर जाएगा. ये सारा कुछ काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ये सारा फंक्शन कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म, जो कि शायद मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइटोप्लाज्म. ये जो अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है ना, जो सारे ऑर्गेनेलिज प्लेस्ड हैं, वो सारे किसके अंदर पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर. तो जो साइटोप्लाज्म है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम है कि वो सारे ऑर्गेनेलिज को होल्ड करके रखता है, वो सबको पकड़ के रखता है, ठीक है. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, ठीक है. और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हमारे पास आती है वो है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस करता है हेरिडिटी में हेल्प, यानी कि जो कैरेक्टर्स पास आउट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो होते हैं न्यूक्लियस की हेल्प के थ्रू. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर होता है क्रोमोसोम्स प्लस डीएनए, ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम और डीएनए, और जो ये न्यूक्लियोलस पार्ट है इसका. और ये जो बाहर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये वाला जो है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म. और जो बाहर वाली मेन बाउंड्री है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है. तो क्रोमोसोम और डीएनए, तो क्रोमोसोम और डीएनए इनका क्या काम है? इनका वही काम है हेरिडिटी में हेल्प करना. और जो डीएनए है हमारा, डीएनए जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. जो यहाँ पे देखना ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे होता है डीएनए, और जो ये हमारे बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं इनके अंदर होता है आरएनए, ठीक है. आरएनए कुछ अमाउंट में इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है वैसे. तो जो डीएनए हमारा, इसका जो फंक्शनल सेगमेंट है, यानी डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट काम करेगा उसको हम कहते हैं जीन. दिस इज कॉल्ड जीन. कि जीन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हेरिडिटी में सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है. और जीन ही वो है जो जिसके थ्रू जो है कैरेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है. और इसी का यही मेन काम है. और उसके बाद हम अगर बात करें तो वो है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है टू टाइप्स में डिवाइडेड है. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड अनदर वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो अगर हम उसको ध्यान से देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो वहाँ पे रफ लगती है. रफ मतलब कि कोई सरफेस अगर स्क्रैची सा लगे थोड़ा सा, तो उसको हम कहेंगे रफ. तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. और राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये क्या करेंगे? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे. जो ये है
हमारे RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और सेल के उस पार्ट में या उस पार्ट में भेजेंगे जहाँ पे प्रोटीन की कमी चल रही होगी, जहाँ पे प्रोटीन खत्म हो गया होगा, ये वहाँ पे प्रोटीन्स भेजेंगे। और ये जो स्मूथ सरफेस दिख रहा है जिसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम है, ये हेल्प करता है फैट्स की सिंथेसिस में, ये हेल्प करता है लिपिड्स की सिंथेसिस में। और इसका एक और काम है, वो ये है कि अगर बॉडी के अंदर कुछ डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि अगर बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिकेंट्स प्रेजेंट है तो उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करेगा। तो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम क्या है कि ये खाने को बनाएगा सेल के अंदर और उसको अलग अलग पार्ट्स में भेजेगा। और उसकी के साथ आता है यहाँ पे हमारी गोल्जी बॉडीज, ठीक है। गोल्जी बॉडीज के अंदर क्या होता है, ये गोल्जी बॉडीज का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नेस और इसको हम कहेंगे वैक्यूल्स। और इसका भी मेन काम यही है गोल्जी बॉडीज का कि जो खाना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कुछ भी सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की होगी, गोल्जी बॉडीज उनको पैक करेगा और फिर ट्रांसपोर्ट करेगा किसके लिए, सेल के लिए, कि जिस पार्ट को ज़रूरत पड़ रही है वहाँ जाके ये गोल्जी बॉडीज़ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो गोल्जी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑफ द सेल। दिस गोल्जी बॉडी इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। अब गोल्जी बॉडीज़ की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ATP। दिस ATP इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, विच मीन्स कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यूनिट्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है और ये ग्लूकोज के साथ मिलके रिएक्शंस करके जो है पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी कि एनर्जी वाला सारा काम, रेस्पिरेशन का सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया संभालेगा और इस करके इसको हम बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। अब सबसे अमेजिंग बात ये है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास भी DNA है और जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास भी कुछ हद तक अपना DNA प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी कुछ हद तक अपना DNA प्रेजेंट है। और एक और ऑर्गेनेली होता है प्लास्टिड, जो कि ये मैंने एनिमल सेल बनाया है, एनिमल सेल के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होएगा, वो प्रेजेंट होएगा किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो उसके प्लास्टिड में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो वो प्लास्टिड जो है उसके पास भी अपना DNA होता है कुछ हद तक, यानी कि ये कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो अपना काम खुद चला रहे हैं, यानी कि इनको क्रोमोसोम से इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम बात करते हैं लाइजोसोम्स की। तो लाइजोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली लाइजोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। अब इनको क्या कहते हैं हम, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनका क्या काम है, इनका काम है क्लैरिफिकेशन करना में, साफ सफाई करने में लाइजोसोम का सबसे बड़ा काम है। लाइजोसोम क्या करेगा, ये देखेगा कि अगर सेल के अंदर कुछ खराब हो गया, मतलब कुछ खराब मतलब अगर कुछ सेल्स हैं, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो मिलियंस और ट्रिलियंस में होते हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस अमाउंट ऑफ सेल है और सेल रेगुलरली बन रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ सेल ऐसे भी तो होंगे ना जो आउट ऑफ यूज़ हो चुके होंगे, जिनकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो हमें वो सेल भी तो देखने। तो उन सेल्स का क्या करेंगे हम बॉडी में रख के, जब हमारे पास नए सेल्स बनी जा रहे हैं, जैसे अगर आपने पढ़ा हो तो हमें पता है कि जो RBCs है, रेड ब्लड सेल्स है, उनका 120 डेज़ का साइकिल होता है, यानी कि 120 डेज़ के बाद वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो उन सेल्स को क्या होएगा, उन सेल्स को ख़त्म तो करना है ना, तो उन सेल्स का क्या होएगा, लाइजोसोम उनको क्या करेगा, एनगल्फ कर लेगा। ये दो प्रोसेस के साथ एनगल्फ करता है, वन इज नोन एज स्पिनोसाइटोसिस, अदर वन इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ये क्या करेगा, अगर इसको पता चला है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, हाँ करो, जैसे ये हमारा लाइजोसोम है, इसको पता लग गया कि हाँ चलो सपोज कर लो ये सेल है और ये लाइजोसोम है। अब लाइजोसोम को पता है कि यहाँ पर ये वाला जो सेल है ये वेस्ट हो चुका है, इसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है। तो लाइजोसोम क्या करेगा, लाइजोसोम इस सेल के पास जाएगा, उसको एनगल्फ करेगा, उसको अपने अंदर ले आएगा, यानी कि इसको अपने अंदर ले आएगा। वो फिर से इस सेल को इसने अपने अंदर ले आया और इसने क्या करना है, यहाँ जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके डिस्पोज ऑफ कर देना है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले ही बताया था, वो क्या करता है, एंट्री और एग्जिट पे चेक करता है, ठीक है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके इसने बर्स्ट हो जाना है लाइसोसोम ने, और वो सारा मटेरियल सेल से बाहर निकल जाएंगे। वो सारे सेल्स जो वेस्ट सेल्स हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और लाइसोसोम ऐसा इसलिए करता है क्योंकि लाइसोसोम के पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। हाईली एसिडिक मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम होती है, इस करके हम उसको एसिडिक कंटेंट कहते हैं। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक जूस प्रेजेंट होते हैं कि ये फटाफट से इनगल्फ कर देता है। तो इस करके हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लाइसोसोम को हम इस करके कहते हैं कि ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा एज अ सुसाइडल बैग। तो यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहेंगे, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा पावर हाउस, और जो हमारा क्या क्या लाइसोसोम हो गया हमारा सुसाइडल बैग। और ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं कंट्रोल। यानी कि पूरे सेल पे अगर कोई कंट्रोल करेगा तो वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बताएगा सेल को कि अब तुम्हें यहाँ पे ये करना है और अब तुम्हें यहाँ पर ये करना है, ठीक है। तो सारा फंक्शन जो कि पूरा ऑल ओवर फंक्शन जो हेडेड करेगा वो करेगा हमारा न्यूक्लियस। अब ये तो बात कर ली हमने किसकी, एनिमल सेल की। यानी कि ये बेसिकली अगर हम बात करी जाए तो यूकैरियोटिक जो सेल है वो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, फिर से वापस आऊँ इस अपने प्रोकैरियोटिक सेल पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्लैजिला मैंने बनाया है, ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है ये मूव करेगा फ्लैजिला की हेल्प से। अब ये खुद तो मूव नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या करेगा, फ्लैजिला की हेल्प से तैरेगा। किसके अंदर, जो बैक्टीरिया जो वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर जब जाएगा तो ये फ्लैजिला की हेल्प के थ्रू मूव करेगा। और इसके पास सेल वॉल होगी, और सेल वॉल वही जो मैंने कल बताया था, इनकी सेल वॉल के अंदर बेसिकली होता है काइटिन प्रेजेंट होता है अगर ये फंगस का सेल हुआ तो। और अगर ये वही हुआ दूसरे सेल्स हैं जो से, तो इनके पास होएगा पेप्टिडोग्लिकेन्स वगैरह, वो सारे कंटेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियोइड है वो इसके पास वो रहेगा आरएनए। मेन जो इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो होता है, मेन जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का है आरएनए, और मेन जेनेटिक मटेरियल किसका, यूकैरियोटिक सेल का यानी एनिमल सेल और ह्यूमन सेल का है डीएनए। और ये डीएनए और आरएनए दोनों हेल्प करते हैं किसमें, सिंथेसिस में। ये क्या करेगा, डीएनए से जब हमारी आगे आरएनए की कॉपीज बनाती हैं, जो ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए टू आरएनए भी बनता है और उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको सेल का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं थोड़ा सा इसको और समराइज कर सकूँ तो मैं एक मिनट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो हमने आप पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप के सेल हैं, आइदर प्रोकैरियोटिक और आइदर यूकैरियोटिक। तो अब हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर क्या होगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होएगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होएगा, और इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होएगा। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है इट मीन्स कि कोई सेल ऑर्गेनेलिस नहीं है इसके पास, सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट है इसके पास प्रोकैरियोटिक के पास, और इसके पास क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट, सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट। अब ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरस। प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है किसमें, बैक्टीरिया और वायरस में। और यूकैरियोटिक किसमें आता है, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे एनिमल सेल और कोमा डाल के प्लांट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।